presence in non-DAS market. So what will your course of action be? Will you seed boxes on a voluntary basis? Is there danger of DTH coming in, or in Bihar ARPU is still very low? So हम लोग क्या है, सभी जेवी लोग से बात कर रहा है, वहाँ के ऑपरेटर से बात करके उनको जेवी को भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। आज क्या होता है कि पटना से बाहर बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है, एक पे चैनल का खर्चा वो भी है, तो सारा नेटवर्क क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है। जो पटना से बाहर नेटवर्क है वहाँ ये सब समस्या चल रही है। जो ऑपरेटर बक्सा का जो कॉस्ट है वो देना पड़ेगा। अगर कनेक्शन को सेव करना है, डीटीएच को नहीं आना है, तो मिल के काम होगा। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जगह हो, लेकिन मिल के काम होगा। वो लॉस का 1800 का बक्सा 900 में बेचने की बात नहीं होगी। जो बॉक्स का कॉस्ट है वो मार्केट से निकालना पड़ेगा। So basically phase 3, 4 digitization, there will be no box subsidy to the operator. Is it all three of you are agreeing on that or something? Why box subsidies? You can't even subsidize for your SMS encryption. जो जयरामन जी बोल रहे थे कि he said 20 rupees. आज के दिन जैसे ही आपके बक्से लगते हैं उसकी एक सब्सक्रिप्शन की ये एसएमएस की बिलिंग शुरू हो जाती है, उसकी इंक्रिप्शन की बिलिंग शुरू हो जाती है, तो वो पैसे तो आपको भरने पड़ेंगे, चाहे आप यूज़ करो चाहे मत करो। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आज आप एक इंक्रिप्शन के बगैर एसएमएस के बगैर बॉक्स शुरू करोगे और 1 साल के बाद उसको करने जाओगे तो वो पूरा बिजनेस ही उलट जाता है। तो डे 1 से ही आपको करना पड़ेगा। What about GTPL stance? You have always entered late and had a track record of. No, luckily since it's extended, so we are not the late entrant now. तो हमको भी उन चीज़ों का तो ध्यान लेके चलना ही पड़ेगा, बिकॉज कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए उस सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है वो तो उसी वहीं से आना पड़ेगा। आप और कोई भी उस पोजीशन पे नहीं है कि उसको लॉन्ग टर्म में विदाउट रिकवरिंग आप वहाँ पे मतलब करते जाओगे, वट एवर इन्वेस्टमेंट यू टॉक। So there is a genuine problem of raising ARPUs all of a sudden. It's historically been a very low ARPU market, and there is a scope of increasing ARPUs, short span of time or medium term. So are you looking at all three of you looking at broadband as a sort of good compensatory growth? Obviously, see, if everyone has to earn money, first is on pure video services that we provide. उसके अंदर में आप आरपू तो बढ़ाना मतलब एक कंपल्सन भी है और रिक्वायरमेंट भी है सबका। विदाउट आरपू तो मतलब नोबडी कैन सर्वाइव। एंड डेफिनेटली अगर सब कोई को अपना बिजनेस बढ़ाना है या अर्निंग बढ़ानी है, तो अर्निंग बढ़ाने के लिए तो मतलब वैल्यू एड सर्विस या ऑल्टरनेट जो भी आप सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं तो वो देंगे, तभी तो वहाँ पे इंटरेस्ट उस बिजनेस में सभी लोग का जागेगा। So what's have you firmed up your broadband plans? Yeah. Have you firmed up your broadband plans? We have, but it's still 3-4 months away. For us, it's 3-4 months away. You're frozen on the technology and all, or it's 3-4 months away to sort of? We are already running our broadband services in Gujarat, so the same format we will be doing here also. Suresh, you have already introduced broadband. What's been we already have our broadband in place. Yeah. So how has fortunately the government एक focus दे दिया है। इतना दिन focus था digitalization में, set top box लगाएंगे, probably we'll put all the focus in broadband now. वो एक time मिलेगा year or so where we can put total focus on broadband now. What's the status in Patna? What's the status of broadband in Patna? It is just picking up. थोड़ा late है, but I think a lot of information has to be given to the consumer to awake him for broadband, and that's what we should be doing for next 1 year. Means you are educating your LCUs on that or something? We are educating our cable operators, but then we'll be going to the consumers as well. Because Delhi and all, city cable is still not rolled out, whereas in Cal you have rolled out. In East, 2 साल से हम लोग broadband कर रहे हैं, last 2 साल से कर रहे हैं, and our broadband is doing very well. और East
team is only handling our central broadband. So my team is looking after their broadband launch. So central. हेलो, थैंक यू। ये अच्छी बात है कि all the three major players are focusing on ARPU increase, which everybody has agreed कि ARPU increase करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन anybody can answer, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ये ARPU की फोकस आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये डर नहीं कि कैरेज कम होगा उसके लिए ARPU करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? सर कैरेज तो ऐसे भी हमारा कम ही हो रहा है, तो बिना आरपू बढ़ाए हुए तो काम ही नहीं होगा। Thanks to you. सुरेश जी, मेरा कैरेज कम क्यों होगा? आप क्यों कम करोगे? एक रीजन तो बताओ क्यों? आज डिजिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट किया एमएसओ ने, हार्ड वर्क किया केबल ऑपरेटर ने, और सारा फल आप खा के जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमने नहीं बोला कि कम हो, कहीं ना कहीं आपको डर नहीं है कि कैरेज आगे कम होगा उसके लिए आरपू में फोकस। मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है, इसका मतलब आप कम करने की सोचना शुरू कर दिए हो। ऐसा सोचो भी मत, इतने लोगों के बारे में तो भी कुछ सोचो। वन मोर क्वेश्चन बिफोर आई गिव, ये अभी फेज 3 फेज 4 की डिले हो रही है, और क्या है आप लोग की कंपनी बड़े हैं, एक्सपैंड होंगे, फाइनेंस रेज करना है, ये एमएसओ के बीच में पीस करके क्या फायदा है? आप देखिए कौन सा भी मल्टीनेशनल कंपनी लीजिए या गोदरेज भी ले लीजिए, गोदरेज सोप बिकता है, हिंदुस्तान लीवर के साथ कॉम्पीट करता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल बिकता है, कॉम्पीट करता है। ये आपस में पीस करके आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को आप क्यों कम कर दिया? एक कॉम्पिटिशन होना चाहिए ना, ब्रॉडकास्ट कॉम्पिटिशन होना चाहिए ना। ब्रॉडकास्टर के फायदे के लिए खुद की टांगे कटवाने के लिए रेडी हो गए हम लोग। बोला जो कलेक्ट करेंगे आपको देने के लिए कर रहे हैं, कि हम सब जगह से कलेक्ट करके लाएं आपको दे दें, इसलिए कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। हम लोग सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं। इतना पैसा देने के बाद भी ब्रॉडकास्टर खुश नहीं है, उसी में दुख होता है हमको। ब्रॉडकास्टर नहीं बोल रहा, मैं जनरल बोल रहा हूं कि आप पीस कर दिया ना, वही आदमी पीस करके इतना ही मार्केट में ऑपरेट करेंगे तो आपका अपॉर्चुनिटी, आपके कंपनी का वैल्यूएशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। I'll genuinely answer your question. आपकी बात सही है कि अगर follow up question is, are you settled, I mean happy with the market share that you have all got? अगर कोई बोलता है कि आई एम हैप्पी विथ माई मार्केट शेयर, तो प्रोबेबली ही थिंक्स कि मेरा मार्केट बस बंद है, और मेरे को नहीं लगता यहाँ जो बैठे हैं किसी का भी मार्केट बंद है, हर एक का मार्केट चालू रहेगा। तो कोई भाई मार्केट शेयर से खुश नहीं है और खुश होना चाहता है, खुश है और खुश होना चाहता है। अंडरस्टैंडिंग जब तक ग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एमएसओ अंडरस्टैंडिंग करता नहीं है। अगर कैरेज का फ्लो ठीक रहते रहता, हमारा डिस्काउंट का फ्लो चलते रहता, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करते। हमारा बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा था एनालॉग में, हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं थी। जब भी रिक्वायरमेंट आती थी, हमारा बिग ब्रदर ब्रॉडकास्टर उसके पास जाते थे कि कैरेज की रिक्वायरमेंट है बॉस, वी हैव टू लुक इनटू इट, एंड द बिजनेस वाज गोइंग ऑन विथ इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन बिजनेस। और इस बिजनेस के अंदर में लास्ट माइल जो कंज्यूमर है, उसका अगर रेट नहीं बढ़ा तो पूरी चेन खराब हो जाएगी। जब तक हम आपस में ट्रूस नहीं करेंगे, पीस नहीं करेंगे, तो ग्राउंड में पीस नहीं होगी। आई कांट गो एंड टेल देम डू पीस व्हेन आई डोंट हैव पीस। तो हमने शुरुआत हमारे घर से की कि हम आपस में पीस करते हैं। हम केबल ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी पीस करे और कंज्यूमर की आरपू बढ़ाए, और वो कंज्यूमर की आरपू तभी बढ़ सकती है। तो वी शोड देम द वे कि वी कैन डू पीस, यू ऑल्सो डू द पीस एंड इंक्रीज द रेट्स। सुरेश जी, माय क्वेश्चन इज कि हम लोग बात कर रहे हैं कि केबल का आरपू पिछले 10-12 साल से स्टेगनेंट है, बढ़ नहीं रहा, लेकिन हमने देखा है डीटीएच ऑपरेटर्स जो हैं वो सेम सर्विस देते हैं इन टर्म्स ऑफ चैनल्स, लेकिन वो अपना रेगुलरली आरपू बढ़ाते जाते हैं। तो अगर एक कोई वजह आप बताना चाहें इसका जो फंडामेंटल रीजन है
what is one reason which you would like to share with the audience that why cable is not able to increase the ARPUs, whereas DTH has been able to raise periodically the ARPUs? अगर साफ साफ अर्थों में इसका उत्तर दूं, कोई भी आदमी पैसे तब बढ़ाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। मैंने अपने 2-4 मिनट के स्पीच में भी ये बोला था, चूंकि जब भी रिक्वायरमेंट आई, एमएसओ ने अगर ग्राउंड में डिस्काउंट दे दिया और केबल ऑपरेटर का पेट भरा, तो वो आरपू बढ़ाने के लिए कंज्यूमर के पास गया नहीं। कोई भी आदमी, चाहे वो ऑपरेटर था चाहे एमएसओ था, इस पीरियड में डिसलेशन के पहले मैं लॉस में बिजनेस कर नहीं रहा था, तो आरपू के लिए किसी की भी परेशानी नहीं थी। अगर आप डीटीएच ऑपरेटर्स को देखो, डिश टीवी इन क्रोर्स ऑफ लॉस, टाटा स्काई इन क्रोर्स ऑफ लॉस, बिग टीवी कभी भी बंद हो सकता है, वीडियोकॉन कभी भी बंद हो सकता है, सो दे आर ऑल इन ह्यूज लॉसेस। अगर वो आरपू कंटिन्यूअस नहीं बढ़ाएंगे तो उनका सर्वाइवल एट स्टेक है। आज अगर केबल का आरपू बढ़े, अगर केबल टीवी में 300 रुपए रेट हो जाएगा तो कल वो 400 कर देंगे, हम 400 करेंगे तो वो 500 कर देगा। क्यों? क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस हैं हमसे बहुत ज्यादा हैं, हमारे खर्चे कम है, उनके खर्चे भी ज्यादा हैं, बट चूंकि हमारे रेट्स कम है, दे आर ट्राइंग टू मैच अस। हमारी आज के दिन रिक्वायरमेंट आ गई कि हमको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 साल में जो नहीं किया अब हम कर रहे हैं। लास्ट 1 साल में जितने कंज्यूमर के रेट बढ़े हैं, नहीं भी करके मेरे हिसाब से अक्रॉस द कंट्री, सारे भारतवर्ष में 50 रुपए से 60 रुपए एवरेज कस्टमर के रेट बढ़ गए, जो 10 साल में 10 रुपए नहीं बढ़े थे। तो रिक्वायरमेंट की वजह से मूवमेंट हुआ है। I think some LCOs should start asking questions. They're very quiet. मेरा सवाल सुनील सर से है। सुनील सर ये कह रहे हैं कि पहले जो कि रेट जो कि केबल का नहीं बढ़ रहे थे, 10 रुपए भी नहीं बढ़ रहे थे, अब 50 रुपए बढ़ा चुके हैं। 50 रुपए बढ़ाए नहीं है, 1.5 साल से जो 150 रुपए ले रहे थे वो ऑपरेटर 100 रुपए पर आ गए, 100 रुपए पर केबल चलाने लगे, जहां तक और उससे भी कम हो गए। पहले 70-80 चैनल भी कस्टमर के यहाँ सही से नहीं पहुंच पाते थे, आज 250 चैनल बेहतर क्वालिटी दे करके भी हम पैसा नहीं ले पा रहे हैं। ये क्यों? ये वजह यह है कि कंपटीशन, एक ऑपरेटर के बीच में दूसरे ऑपरेटर खड़े हो गए, पुराने ऑपरेटर के बीच में नए ऑपरेटर खड़े हो गए, और ये अपने अपने एक दूसरे को कनेक्शन छीनने के लिए आपस में लड़ गए। ये लड़ने के वजह से आज के डेट में 1.5 साल से जो पैसे नहीं आ रहे थे वो बहुत 50% जो ले रहे थे, 100 रुपये ले रहे थे, 50 रुपये लेने शुरू कर दिए। हमारे जो 100 रुपये लेते थे उसको तो 200 रुपये लेना चाहिए था, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी अब देना शुरू कर दिया, चैनल 100 नंबर बढ़ा दिया हमने। ये नहीं हुआ। आज 1-2 महीने से मैसो लोग अपना जो भी टूस किए हैं, जो किए ग्राउंड पर सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 50% सुधार हुआ है, 50% अभी भी वही स्थिति है। इस स्थिति में बोलते हैं कि 250 रुपये 300 रुपये का पैकेज लेकर के जाते हैं ऑपरेटर, तो दूसरे ऑपरेटर से कस्टमर कहता है कि यार अभी तो वहाँ कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है, मैं क्यों दूँ पैसा। एक ऑपरेटर के सामने दूसरे ऑपरेटर के यहाँ कस्टमर फोन करता है कि आपके यहाँ कितना लग रहा है भाई, आप कितने लेते हैं पैसे। नहीं, अभी ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ अभी लागू तागू कुछ नहीं है, ये ऑपरेटर का खाली मोनोपोली है। इस वजह से ग्राउंड में भी ये कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। इसको आप लोग दूर कैसे कर सकते हैं? आप नेटवर्क जो एमएसओ हैं जो बड़े, उस तरह का जो भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग एक